ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿਲਸਿਲਾਵਾਰ ਜੋ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੋਂ, ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਪਜੀ, ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪੌੜੀਆਂ ਜ਼ੀਨਾ, ਔਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਪੌੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੌੜੀਆਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਪੌੜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਮੈਦਾਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਿਵਾਣ ਦੀ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ, ਕੁਝ ਸਹਾਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਸਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਟੇਕ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਦਤ, ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਰਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁਝ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਆਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਰਹਿਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਕਈ ਦਫਾ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਪ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਐਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਖਿਆਈ ਹੈ ਧੁਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦੇ ਮੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਖੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਰਤ ਧਿਆਨ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਸਮਝੋ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਉਹ ਅਨਾਹਦ ਨਾਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਇਹ
कि ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਸੌਣਾ ਜਾਗਣਾ ਹੱਸਣਾ ਰੋਣਾ ਸਭ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸੁਰਤ ਚਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ 5 ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਸਰਮਖੰਡ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਟਕਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘੜੀਏ ਸ਼ਬਦ ਸਚੀ ਟਕਸਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘੜਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਐਸਾ ਘੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਘੜਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਤਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮਖੰਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਧਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਜੋ ਧਰਮਖੰਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਬੋਲੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਗਲਤ ਸੋਚੇਗੀ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਕੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਏ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਸ਼ ਖੇਡੇ। ਤੋ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਸ਼ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਸਤਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਬਖਾਣੀਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੁਰਖਾ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੇਖ, ਕੋਈ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਥੀਏਟਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਗਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਲੱਬ, ਕੋਈ ਆਮ ਥਾਂ, ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ। ਪਰ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਐਸੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਭਲੇ। ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ? ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਵੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਛੜਿਆ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸੇ ਵਕਤ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਨਾਤਨੀ ਮੰਦਰ ਹੋਵਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵਨ, ਜੈਨ ਮੰਦਰ ਹੋਵਨ, ਬੌਧ ਮੰਦਰ ਹੋਵਨ। ਮੰਦਰ ਸਿਰਫ ਬਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੜੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਸਿਰਫ ਸੱਚ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ तो इतनी गल जरूर है कि उसने अपनी जिंदगी का भी सही इस्तेमाल नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? जाप है ही नहीं। अगर जाप होवे वो मनुष्य गुरुद्वारे की बेदबी नहीं करेगा। इतनी मैं अर्ज कर दिया। अदब नाल आवेगा, अदब नाल बैठेगा, अदब नाल सुनेगा, अदब नाल सारे कर्म करेगा। और अदब ही बुजुर्गी का, बुजुर्ग के सत्कार का पहला चिन्ह है। अदब, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। इकबाल ने साफ कह देता। अदब, गुरु नाल प्यार है अदब, परमात्मा नाल प्यार है अदब। जिथे बेअदबी है उत्थे एक गल ते मनुख ने मन लई कि मैथों वड्डा नहीं, कोई अदब करने की लोड़ नहीं। अदब बंदा किसदा करदा है? अपने तो वड्डे दा। ते जे बेअदबी तो इतनी गल तो स्पष्ट हो गई, गुरु कोई वड्डा नहीं, गुरुद्वारा कोई वड्डा नहीं, असीं गलत इस्तेमाल कर सकते। बेअदबी करनी है। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक सवैया मैं थोड़े सामने रखा। भाई साहब कहते ने, बाहर की अगन बूझत जल सरता के, नाव में जो आग लागे कैसे कह बुझाइए। मकान नू अग लग जाए, दुकान नू अग लग जाए ते पानी नाल बुझावांगे, ते भाई जी कहते ने पानी नू अग लग जाए फिर की करिए? फिर किस तरह बुझाइए? चोरन के त्रास ओट लीजिए कोट गढ़, गढ़ में जो लूट लीजिए कहां कत जाइए। चोरां तो भजदे हुए, डाकुआं तो बचदे हुए चले जाइए थाने, तो उत्थे पुलिस ही लुट लवे, फिर कित्थे जाइए? फिर किहड़े पासे जाइए? भाई साहब कहते ने, तैसे माया डर डरपत हार जो गुरुद्वारे आवे, कहां जो व्यापे माया कहां ठहराइए। दुनिया के कलेशां तो डरदे हुए, दुनिया के विकारां तो डरदे हुए, दुनिया के अनर्थ तो डरदे हुए आइए गुरुद्वारे, ते गुरुद्वारे भी अनर्थ करन लगी तो फिर कित्थे जावांगे? ते पानी विच अग लग गई, ते किस तरह बुझाइए? ते पानी च अग लग गई। जे गुरुद्वारे भी अनर्थ करना है तो मैं इतनी अर्ज कर दिया, गुरुद्वारा ना कोई प्लेग्राउंड है, ना ये क्लब है, ना ये थिएटर है। इत्थे कोई इंद्रियां दा रस नहीं, इत्थे कोई मनोरंजन नहीं। इत्थे अखां दा रस लैण वास्ते नहीं आना, ते ना ही गुरबाणी अखां दा रस है, ना जबान दा ये रस है, ना ये कन्नां दा रस है, ना ये खलड़ी दा रस है, ये आत्मा दा रस है। हुण आत्मा दा रस मानण वास्ते इतनी गल स्पष्ट है कि मनुख अपने जीवन का सही इस्तेमाल करे। कादर करीम ने बहुत वड्डी बख्शिश सानू ये शरीर दिता है, एक काया दिती है, तो इस काया का सही इस्तेमाल करना, इसका सही प्रयोग करना है। साहिब कहते ने, जो काया का सही प्रयोग करता है वो बंदा धर्मखंडी है। पहुंच गया पहली स्टेज पे, पहुंच गया पहली हालत पे। हुण जपदियां जपदियां इसने दूजी हालत विच पहुंचना है। दूजी हालत ज्ञान खंड, प्रकाश दा खंड, सूझ समझ दा खंड, चानण दा खंड। उत्थे मनुख दा पुजारी नहीं रह जाता, व्यक्ति दा पुजारी नहीं रह जाता। उहदे वास्ते ऐसा प्रतीत होता है कि अवतार भी तुच्छ ने,
सतगुरु की बाणी ऐसा कहती है कि रब नाल जुड़न वास्ते अगर अवतार भी दीवार बने तो उन्होंने एक पासे कर दो। वो भी क्यों दीवार बने? भगत कबीर कहने ने, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद को नंदन काको रे। तुसी कहंदे हो नंद दा नंदन, भाव कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, नंद दा नंदन, नंद दा पुत्र सी, तो फिर नंद किस दा नंदन है? फिर वो नंदन किस दा नंदन है? गल कित्थे मुकाओगे? गल कित्थे खत्म करोगे? भाई गुरदास जी का एक ज्ञान खंड का सवैया मैं तुहानूं सरवण करावां ते फिर सरम खंड की गल करिए। ज्ञान खंड विच पहुंचा होया मनुख नूं रब नहीं मनेगा, क्योंकि जे मनुख नूं रब मन लईए तो मनुख का जन्म भी है, उसका मरण भी है, फिर रब का जन्म भी हो गया, रब का मरण भी हो गया। ते सो मुख जले जित कहे ठाकर जोनी, ओदी रसना जल जानी चाहिए। जिहड़ा कहंदा रब जल जम पिया, परमात्मा का जन्म है। ज्ञान खंड विच पहुंचा होया मनुख नूं रब नहीं मनेगा। ये ठीक है कि परमात्मा की जोत सारिਆਂ ਦੇ च, सब में जोत जोत है सोए, तिसके चानन सब में चानन होए। घर दे प्रकाश आया है, चानना आया है, ठीक है चानना आया है, पर हुण कोई आखे सारे का सारा सूरज मेरे घर दे आ गया, ये किस तरह मन लईए? नहीं आ सकता। जमीन नालों 60,000 गुणा वड्डा है सूरज, तेरे घर दे किस तरह आएगा? ਉਹਦਾ ਨੂਰ आ सकता, ਉਹਦਾ प्रकाश आ सकता, ਉਹਦੀ धुप आ सकती है। सूरज तेरे निक्के जिहा मकान विच नहीं आ सकता, वो तो समुची धरती विच भी नहीं आ सकता, जमीन भी छोटी उस वास्ते। वो जिहड़ा परिपूर्ण परमात्मा है उसकी झलक तेरे अंदर आ सकती, उसकी अंश तेरे अंदर आ सकती, पूरे का पूरा नहीं। इस वास्ते ज्ञान खंड विच पहुंचा होया मनुख नूं रब नहीं मनता। भाई साहब भाई गुरदास जी का एक सवैया तुहाडे सामने रखां ते अगां चलीए। भाई साहब कहंदे ने, जाके अनेक फनगर भार धरन धारी, ताहे गिरधर कहे कमन वडाई है। हिंदुस्तान दे एक परमात्मा का नाम है गिरधर। गिर कहंदे ने पहाड़ नूं, पहाड़ दे चुकण वाला। श्री कृष्ण नूं कहंदे ने गिरधर। ते हुण भाई साहब कहंदे ने, जिस परमात्मा ने ये सारी जमीन चुकी, खंड ब्रह्मंड चुके, उस परमात्मा नूं कह देना पहाड़ दे चुकण वाला, ये कोई महिमा तो नहीं, ये कोई उसकी वडियाई तो नहीं। कहते उन्हें एक उंगल दे नाल गोवर्धन पर्वत चुक लिया सी। दरअसल ऐसा जापदा, मैं गोवर्धन पर्वत वेख्या, उस पासे हड़ काफ़ी आंदे, जमुना जब चढ़दी सी काफ़ी इलाकिਆਂ ਨੂੰ बर्बाद करदी सी। तो गोवर्धन नामक कस्बे ਨੂੰ बचाने वास्ते जापदा है कोई बंद बनाया है, और श्री कृष्ण ने बनवाया होना है, क्योंकि इस तरीके नाल वो लगदा है। थोड़े दिनों च बन गया होना है उन्हां दी प्रेरणा नाल, भी उंगलों के इशारे ते कम हो गया, एक प्रतीक से। बाद च कह दिता गया पहाड़ उन्होंने उंगल ते चुकया, ना पै गया गिरधर, पहाड़ दे चुकण वाला। भाई साहब कहते हैं चलो मन लेंदे आ, जाके अनेक फनगर भार धरन धारी। ऐ मनुख तू ये भी कहना भी ये जिहड़ी जमीन है शेषनाग ने चुकी हुई है, जिहदे हज़ारां फन ने। शेषनाग का मतलब है सहसनाग, सहस कहते हैं हज़ार में, हज़ारां मूँहां वाला सा, भी उन्हें जमीन चुकी है। तो भाई साहब कहते एक पासे तू कहना है शेषनाग ने जमीन चुकी हुई है, दूसरे पासे तू कहना है भगवान ने पहाड़ चुकया है। तो भगवान वड्डा होया कि सप वड्डा होया? शेषनाग वड्डा होया। जाके अनेक फनगर भार धरन धारी, ताहे गिरधर कहे कमन बढ़ाई है। जाको एक बावरो विश्वनाथ कहावे, ताहे ब्रजनाथ कहे कौन सो बताई है। एक बावरो, शिव जी नूं भोला नाथ कहते हैं, बई बड़ा ही भोला है, बहुत भोला है, छेती वर दे दिंदा है, छेती शराब दे दिंदा है, बहुत भोला है, भोला नाथ कहते हैं उसनूं, बहुत भोला है। ते भोला नाथ करके उसका नाम बावरा भी पिया है। नाले उसनूं कहते हैं विश्वनाथ, सारे विश्व का नाथ मालिक।
ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਵਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ, ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ। ਬ੍ਰਿਜ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਮੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਾਥ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ। जाके एक ओंकार के बिठारे जग, ताहे नंद नंदन कहे, कौन सो बताई है। जिस एक ओंकार ने बड़े बड़े पीरां पैगंबरां अवतारां सृष्टियां नूं जन्म दिता, ऐसे परमात्मा नूं कह देना वो नंद दा पुत्र है, ये कोई वडाई ना हुई, ये कोई उस्तत नहीं। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮੂੜ, ਐਸੇ ਆਰਾਧੇ ਤੇ ਮੋਨ ਸੁਖਦਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸਤਤ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਗਿਰਧਰ ਗਿਰਧਰ ਕਹਿ ਕੇ, ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਬ੍ਰਿਜਨਾਥ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਨੰਦ ਨੰਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਪਮਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮੂੜ। ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀ। ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਕੰਡਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾਂ ਹੋ ਮੀਆਂ, ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਨਤ ਹੈ ਉਸਤਤ, ਨਿੰਦਾ ਹੈ ਅੰਧ ਮੂੜ, ਐਸੇ ਆਰਾਧੇ ਤੇ ਮੋਨ ਸੁਖਦਾਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਗੱਲ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਪਸਰੀ ਹੋਈ। ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਕਦੀ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਅਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਅਜਨਮ। ਅਜਨਮ ਹੈ, ਅਮਰਨ ਹੈ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਜਨਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਐਸਾ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ। 52 ਕੋਟ ਜਾਂ ਕੇ ਰੁਮਾਵਲੀ, ਰਾਵਣ ਸੈਨਾ ਜੈ ਤੈ ਛਲੀ। ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛਲ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਾਮ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਖੇ। ਸਹਿਸ ਕੋਟ ਬੋ ਕਹਿਤ ਪੁਰਾਨ, ਦਰਿਓਧਨ ਕਾ ਮਥਿਆ ਮਾਨ। ਜਿਸਨੇ ਦਰਿਓਧਨ ਨੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵੇਖੇ। ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੇ ਬਣਾਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕੀ ਕਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੇ ਤਿਸ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਐਸੀ ਸਮਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪਹੁੰਚਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਖਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਮਾਗ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਧਰਮ ਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਅਨਰਥ ਥੋੜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਘਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਘਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੇ ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਲੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਸਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਉਂਝ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਠੀਕ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਗਣ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਨੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਤੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਸਫਲ ਹੋ ਗਈ। तो मैं अर्ज करा, जो गुरुद्वारे का गलत इस्तेमाल कर रहा है, समझ लो जिंदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो जो जिंदगी का गलत इस्तेमाल कर रहा है वो धर्मखंडी नहीं है, वो बिल्कुल धर्मखंडी नहीं, पहले पड़ाव ते भी नहीं आया। और जे ज्ञान खंड, शर्म खंड, कर्म खंड, सच खंड, ये बड़ी दूर दियां गल्लां ने, बहुत दूर दियां गल्लां। जनाब शेख सादी कहंदे ने, दफ्तर तमाम गुजस्त वपाया रसीदे उम्र मां हम चुना दर अवल वसफ्त मांदा है। ऐ खुदा परिपूर्ण परमात्मा, जिंदगी दा साजो समान मुक चले है, साजो समान खत्म होने लगा है, ते मैं तेरे रस्ते ते अजे इको ही कदम रखे। रस्ता बहुत लंबा, बहुत लंबा, जिंदगी बहुत थोड़ी रह गई, बहुत थोड़ी रह गई, ते चलिया मैं एक कदम हाँ। कहना पेगा शेख सादी तू धनता दे योग है, एक कदम चलिया ते हैं, मैं ते वो बंदे देखदा पिया जिन्हां दे पैर कबर दे पहुंचण लगे ने, वो भी एक कदम कोई नहीं चले। तू धनता दे योग है, एक कदम चलिया ते है ना, कम से कम उस मार्ग दा पांदी ते है ना, तू उस रस्ते दा चलन वाला राही ते हैं, वो भी देखे ने जड़े एक कदम भी नहीं चले, हालांकि कदम कबर दे पैंदे पे, मौत बिल्कुल नेड़े। दफ्तर तमाम व्यस्त वपाया रसीदे उमर, कई दफा मरण लगे, रिश्तेदार कह देंगे उधर श्वास निकलते पे, उन्होंने भी वाहगुरू वाक, हुण की वाहगुरू खाक आखे, हुण ते दरिया दे तूफान आ गए, हुण ते समुंदर दे तूफान आ गए, हुण किस तरह पार होगा, हुण किस तरह बेड़ी ठेलेगा। इते भर सरवर जब उछले तब तरण दे, जब भरे होया सरोवर उछल पवे, तूफान आ जाए, जिस तरह उछलता है पानी सागर दे, जहाज़ां दा चलना औखा हो जाता है, जिंदगी दे जो श्वास उछलते ने, बाहर निकलते हैं, उदों वाहगुरू आखना बहुत औखा। आले दुआले लोकी खड़े होंदे ने, मुरदे दे कहंदे ने वाहगुरू आख, ओदे श्वास निकल रहे होंदे ने, और उस वक्त उसनूं पता चलता है बड़ी कीमती जिंदगी सी, व्यर्थ चली गई, बड़ा कीमती जीवन सी, व्यर्थ चला गया। उर्दू का एक शायर कहता है, न देखने की तरह हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तो रोशनी देखी। जिंदगी का दीवा बुझन लगा, अज पता चलिया, और यकीन चाहो जो बुझदा है उदों ही पता चलता है, पहले नहीं पता चलता, पहले एवें ही जल जाता है, उसकी रोशनी तो लाभ ही नहीं लेंगे, जिंदगी का कभी सही इस्तेमाल ही नहीं करते। जीवन जदों हथों जान लगता है, दीवा जब बुझन लगता है, उदों ख्याल आंदा लै दीवा ते गया, जोत ते गई, रोशनी ते गई, पर उस तो पहले समझना है, तां जाके गल बनेगी। तो चलना की है, वाहिगुरू वाहिगुरू आखी जाना, इहदे च ध्यान जोड़ना, ये चलना है, बस यही चलना है। और ऐसा जिहड़ा मनुख चल पे और पहले पड़ाव ते पहुंचेगा। पहला पड़ाव की धर्मखंड, धर्मखंड का मतलब कि वो जिंदगी का सही इस्तेमाल करेगा,
गलत खावेगा नहीं, गलत बोलेगा नहीं, गलत वेखेगा नहीं, गलत सुनेगा नहीं, गलत पासे चलेगा नहीं, गलत करेगा नहीं। हर इंद्रिय का सही इस्तेमाल करेगा, हर इंद्रिय की सही वरतों करेगा। धर्म खंडी जाप जारी है, पहुंच जाएगा ज्ञान खंड विच। ज्ञान खंड विच जो पहुंचेगा उसनों पता चलेगा कि रब एक व्यक्ति नहीं, वो तो एक शक्ति है। असी अरदास करते हैं ना, प्रथम भगवती सिमर के। भगवती का मतलब की शक्ति, ताकत, पसरी हुई ताकत। परमात्मा एक भगवती है, परमात्मा एक शक्ति है, परमात्मा एक ताकत है और पसरी हुई है। उस निराकार तो ही तरह तरह के आकार बनते हैं ते सारे आकार फिर उस निराकार में समा जाते हैं। जब उद करत करा कर तारा, प्रजा धरत तब दे अपारा। जब आकर्थ करत हो कब हूं, तुम में मिलत देह दर सब हूं। फिर तेरी सारी देही विच लीन हो जाते, सारा आकार निराकार विच लीन हो जाता है। ज्ञान खंड विच पहुंच के ये मनुख नूं पता चलता है, केते पौन पानी दै संकर, केते कान महेश, केते बरमे गाड़त गड़िए। रूप रंग के वेश, कई कान ने, कई महेश ने, कई सिद्ध बुद्ध नाथ ने, कई देवियां ने, कई दुर्गा ने। बड़ा कुछ लंबा चौड़ा पसारा उसके सामने प्रगट हो जाता है। इस वास्ते व्यक्ति का पुजारी नहीं रह जाता, व्यक्ति का सत्कार जरूर करता है, व्यक्ति का पुजारी नहीं होता। इतनी मैं अर्ज कर, पिता का सत्कार करता है, बड़े भरा का सत्कार करता है, गुरसिख का सत्कार करता है, लेकिन पुजारी नहीं होता। पुजारी तो अकाल का, अकाल का, सिर्फ अकाल का। यह जिहड़ियां गल्लां ने ना कि पूजा अकाल दी, दीदार खालसे का, परचा शबद, ये तीन गल्लां सानूं दित्तियां ने। दीदार किहदा करना है? गुरु का दीदार करना होवे, किहदा? खालसे का दीदार। और फिर जो टेक रखनी है, भरोसा रखना है, जिस तो सारी शिक्षा दीक्षा लेनी है, वो शब्द, परचा शब्द का, दीदार खालसे का, पूजा अकाल दी, प्रस्तिस अकाल दी। ये तीन गल्लां साडी झोली च पाईयां ने गुरुदेव ने। ते जे पूजा व्यक्ति दी है ते भरोसा किसी बंदे का है, तो खिमा करनी सिख नहीं है तो गल खत्म। ये ज्ञान खंड कितने पहुंचे, इनू गल समझ ही नहीं आई, इनू पता भी नहीं। तो ज्ञान खंड ये सारे दृश्य सामने आ जाते हैं। जाप जारी है, मनुख पहुंच जाता है सरम खंड। ते मैं फिर अर्ज करा, जपजी की बाणी पौड़ियां की बाणी, ते पौड़ियां बनाईयां जांदियां उपर चढ़न वास्ते, सुरत नूं चढ़ाना है। ते सुरत किसी की चढ़ रही है, फिर मैं लफ्ज दोहरा दिया, पहचान ये होगी वो अपनी जिंदगी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, कतई नहीं करेगा। कि जब जिंदगी का नहीं गलत इस्तेमाल करता, वो किसी चीज़ का भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, हर चीज़ का सही इस्तेमाल करेगा। जिवें मैं अर्ज की थी, गन्ने विच कादर करीम ने रस पा दिता, ये गुड़ बनाया जा सकता है, ये शक्कर बनाई जा सकती है, ये शराब भी बनाई जा सकती है। हुण शराब बना लेनी गलत इस्तेमाल है गन्ने का, अंगूर का, पर खंड बना लेनी सही इस्तेमाल है। जिंदगी नूं जहर भी बनाया जा सकता है, जिंदगी नूं अमृत भी बनाया जा सकता है। और जहर ते अमृत विच कोई बहुत दूरी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का फैसला, बिख अमृत बसे एक संगा, बिल्कुल नेड़े ही ने, पड़ोस च। स्वर्ग ते नरक कोई बहुत दूर नहीं है, अमृत ते जहर कोई बहुत दूर नहीं है। उसे ही अंगूरां दे शराब छुपी पई है, उसे अंगूरां दे रस छुपिया पिया, उसे ही गन्ने दे शक्कर छुपी पई है, उसे ही गन्ने दे शराब छुपी पई है। ऐसे ही जिंदगी दे जहर है, ऐसे ही जिंदगी दे अमृत है। तू अमृत पीना है कि जहर पीनी है, मर्जी है तेरी। बिख अमृत बसे एक संगा, अमृत ते जहर विच कोई बहुत दूरी नहीं है। जीवन नूं जहर भी बनाया जा सकता है, जिंदगी नूं अमृत भी बनाया जा सकता है, पर जहर बनाना आसान है, क्योंकि जहर बनाने का मतलब है जिंदगी नूं तोड़ना, बर्बाद करना। अब मेरे सामने टेप रिकॉर्डर पे है, हुण मैनू कोई आखे तू बना, मैं किस तरह बनावा, मैनू समझ ही नहीं, सूझ ही नहीं। ये तो पूरा इलम चाहिए, पूरा ज्ञान चाहिए, फिर पूरे साधन चाहिए ना, तां जाके बनेगा। पर मैनू कोई आखे तोड़ दे तो मैं उन्हें चुक के मारा, थले टुट गया और गल खत्म। तोड़ना तो आसान, जिंदगी नूं बर्बाद करना है, तोड़ना बिल्कुल मामूली गल है।
पर बनाना है, सवारना है, बड़ी औखी गल है, बहुत औखी गल है। सारे साधन जुटाने पैणगे, मेहनत जुटानी पैगी, सूझ समझ जुटानी पैगी, तां बंदा जिंदगी नूं सवारेगा। जिंदगी नूं बिगाड़ना तो बहुत आसान है, तोड़ना तो बहुत आसान है। किसी चीज नूं भी तोड़ देना एक बच्चा भी तोड़ सकता है, पर हर बंदा बना नहीं सकता। ते तोड़ना कोई कला नहीं है, जोड़ना कला है। इतनी मैं अर्ज करते हैं। सरमखंड दे विच मनुख की जिहड़ी हालत बनती है, पातशाह फरमान करते हैं, सरमखंड की बाणी रूप, तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ये बंदा सरमखंड विच पहुंच गया, की पहचान। सरम का मतलब है मेहनत, संस्कृत का शब्द है सरम, ते शर्म के अखरी अर्थ ने मेहनत, मुशक्कत। क्योंकि नाम ध्याना भी मुशक्कत है। जिन्नी नाम ध्याया गए मुशक्कत का, बड़ी मुशक्कत है, बड़ी मेहनत है, बड़ी साधना है। शर्म लफ्ज परशियन का होवे, इहदे अर्थ बन जाने लज्जा, हया, शर्म। पर शर्म शब्द संस्कृत का होवे, इहदे अखरी अर्थ बनते मेहनत, मुशक्कत। मुशक्कत का खंड, मेहनत का खंड, तीसरा खंड, वो तीसरी चढ़ाई बड़ी बिखड़ी है, बहुत बिखड़ी है। हेमकुंड साहब जिहड़े चढ़ते ना, तो जदों अगों 1000 पौड़ियां आउंदियां, बाकी तो सोच सहजे सहजे लोग चढ़ जाते हैं, पर वो जिथे 1000 पौड़ियां आउंदियां उत्थे चंगे चंगे रह जाते, चंगे चंगे। मैं 2 पौड़ियां चलदा सी, तीसरे ते बैठ जाता सी, 2 चढ़ा फिर तीसरे ते बैठ। उन्हें 1000 पौड़ियां मैं 4 घंटिया अबूर किया। पिछों थके होया है, पौड़ियां देख के हैरान हो गया। पूछया भी किनियां, कहने लगे 1000 ने। हूँ 1000 ने पौड़ियां, 2 चढ़ता सी मैं, क्योंकि पिछे 10-11 मील का पैंडा तय करके आए सी। इन्नी चढ़ाई, इन्नी बिखड़ी चढ़ाई। शर्मखंड एक बिखड़ी चढ़ाई है, बहुत बिखड़ी, और इत्थे डिगण का भी डर है। इत्थे मनुख सुस्त भी हो सकता है, इत्थे मनुख रुक भी सकता है, क्योंकि बड़ी करड़ी चढ़ाई है। ज्ञान तो बहुत मिल गया, बड़ी समझ मिल गई बंदे नूं कि परमात्मा व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है। तो जिंदगी का हुण इस्तेमाल भी सही कर रहे हैं। धर्म खंड चो लंघ चुके हैं, ज्ञान खंड चो लंघ चुके हैं, हुण पहुंचे हैं सरम खंड विच। बड़ी मेहनत है। मेहनत की है? अपने आप नूं घड़ना। की घड़ना है? साहब कहते हैं, तिथे घड़िए सुरत मत मन बुद्ध, तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। साडे शरीर के अंदर एक अंतस्करण परिपूर्ण परमात्मा ने पा दिता, जिन्हों कहते हैं मन बुद्ध चित्त अहम। चतुष्टा अंतःकरण, इसनों कहते हैं चतुष्टा अंतःकरण। अंदर एक शक्ति कम करती है, उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम किया गया। जद बंदा फुरनिया विच बैठा होवे, फुरने अंदर पैदा हो रहे हैं विचार, ये मन है। ते जद बंदा किसी की याद विच बैठा होवे, ये चित्त है। ते जद बंदा किसी फैसला कुन हालत विच बैठा होवे, कोई निर्णय करना है, कोई फैसला करना है, उदों बुद्ध है। ते चौथा है अहम, मैं हाँ और मैं होवां। ये चौथी शक्ति का चौथा हिस्सा है। मनुख के अंदर अहम भाव हर वक्त रहता है। मन बुद्ध चित्त अहम। हुण इन्हां चारां नूं घड़ना इस शर्मखंड विच, यह काम बहुत औखा है। शब्द के आसरे ते गुरुद्वारा टकसाल है, इत्थे घड़ना, ये टकसाल है। हुण मैं देखना टकसालां बड़ियां खूबसूरत ने, कई देशों विच, कई शहरों विच, अपने देश विच बहुत खूबसूरत टकसालां ने। पर मन घड़िया जा रहा होवे, बुद्ध घड़ी जा रही होवे, कुछ घड़िया नहीं जाता। टकसालां ने, सिर्फ टकसालां। ते टकसाल बनाई होवे, ते जिस वास्ते टकसाल बनाई है उसका इस्तेमाल ना होवे, ते गल ते नहीं ना बनी। फिर सरमखंड विच की ये शब्द के आसरे ते सिख घड़दा है अपने मन। ते घड़े हुए मन की की पहचान है? अंदरों गलत फुरने नहीं पैदा होंगे, गल खत्म। जेड़े फुरने पैदा होंगे चंगे पैदा होंगे। बुद्धि घड़ी गई, की पहचान है? गलत फैसला नहीं करेगी, गलत निर्णय नहीं करेगी। जो फैसला करेगी बिल्कुल सही करेगी, मजाले गलत हो गए। चित्त घड़िया गया है, की पहचान है? वो सही गल्लां नूं याद करेगा, चंगियां गल्लां, माड़ी नहीं, चंगी याद विच बैठा होगा। ते आहंग भी, हंकार भी घड़ा गया। आहंग भाव, जिस दिन हंकार घड़िया जाता है, हंकार अणख बन जाता है, गैरत बन जाती है।
हंकारी भी नहीं झुकता, अणखीला भी नहीं झुकेगा। इतनी मैं अर्ज कर दें, हंकारी नहीं झुकेगा एक मजलूम दे अगों, एक गरीब दे अगों, एक भगत दे अगों, एक गुरु दे अगों, हंकारी नहीं झुकेगा। पर जिहड़ा अणखीला है, गैरतमंद है, वह भी नहीं झुकेगा जालिम दे अगों, दुराचारी दे अगों, ठग दे अगों नहीं झुकेगा। जो जालिम दे अगों झुक गया है वह अणखीला नहीं है। इतनी मैं अर्ज कर दिया। ते जिहड़ा गुरु दे अगों झुक गया है, सिख दे अगों झुक गया, वह हंकारी भी नहीं है। जो दिसे गुर सिखड़ा तिसने उन्होंने लागों पाए जियो। जो गुरु दे अगों झुक गया है, जो सिख दे अगों झुक गया है, यह हंकारी नहीं है। झुकण का मतलब है मैं सिखी कबूल करना, झुकण का मतलब है ऐ गुरु मैं तेरी गल प्रवान करना, यह हंकारी नहीं है। ते जिहड़ा जालिम दे अगों झुक जाए, दुराचारी दे अगों झुक जाए, वो अणखीला नहीं है, वो गैरतमंद नहीं है। औरंगजेब दे अगों सारा हिंदुस्तान झुक गया, गुरु गोबिंद सिंह जी नहीं झुके, नहीं झुकना, गल खत्म। ते जे किधरे औरंगजेब दे अगों गुरु गोबिंद सिंह जी भी झुक जाते, हिंदुस्तान की तवारीख कुछ होर होनी सी, हिंदुस्तान की हालत कुछ होर होनी सी, सिलसिला कुछ होर दा होर बन जाना सी। औरंगजेब ने एक हुक्म नामा समुचे हिंदुस्तान में करवाया, एक ढंडोरा, कि कोई हिंदू गले दे शस्त्र नहीं धारण कर सकता, कोई हिंदू सीस ते कलगी नहीं ला सकता, कोई हिंदू घोड़े की असवारी नहीं कर सकता, कोई हिंदू झटका नहीं कर सकेगा। झटका हिंदू करते सन, शायद आपको पता हो, राजपूत करते सन। गुरु गोबिंद सिंह जी तो पहले का वाक ये मौजूद है, झटका राजस्थान में अज भी है, हिंदू करते हैं, राजपूत। औरंगजेब ने हुक्मनामा जारी करा दिता, कोई हिंदू झटका नहीं कर सकेगा, इस्लामी शरह के मुताबिक ही लेना पड़ेगा मांस, झटका नहीं कर सकता। क्यों? झटका करेगा शस्त्र रखेगा, शस्त्र रखेगा तो फिर वो अणखीला भी बने। कोई हिंदू झटका नहीं कर सकता, कोई हिंदू घोड़े की सवारी नहीं कर सकता, सीस ते कलगी नहीं ला सकेगा, और कोई हिंदू अपनी बरात के अगों बाजे नहीं बजा सकता। यह हुक्मनामा जारी हो गया समुचे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान सहम गया। आनंदपुर साहब तो एक सदा बुलंद हुई, ऐ औरंगजेब मैं सीस ते कलगी लावांगा, मेरे सिख भी लाएंगे, भावें लोड़ नहीं सी। मैं घोड़े की सवारी करांगा, मेरे सिख भी करेंगे, मैं शस्त्र धारण करांगा, मेरे सिख भी करेंगे, और मैं झटके की प्रथा भी जारी करांगा। तेरा कोई हुक्म मनण नूं मैं तैयार नहीं। और हिंदुस्तान के तवारीखदान कहते हैं, जे किधरे ये हुक्म आनंदपुर साहब तक भी पहुंच जाता, और इस हुक्म की लपेट दे किधरे आनंदपुर साहब भी आ जाता, अज हिंदुस्तान की तवारीख कुछ होर होनी सी, गल कुछ होर होना सी। ये तो किसी की जरूरत है, नहीं झुके, नहीं झुकना। जफरनामे में बड़े सुंदर वाक ने, मैं थोड़े सामने रखा। अणखीले बंदे दी ते हंकारी बंदे दी पहचान है। और मैं फिर अर्ज कर दिया, हंकारी भी नहीं झुकेगा, अणखीला भी नहीं झुकेगा। अणखीला नहीं झुकेगा, जालिम दे अगों, मजलूम दे अगों झुक जाएगा, गरीब दे अगों झुक जाएगा, गुरु दे अगों झुक जाएगा, सिख दे अगों झुक जाएगा। पर हंकारी नहीं झुकेगा, ना गुरु दे अगों, ना मजलूम दे अगों, ना सिख दे अगों, ना संगत दे अगों नहीं झुकेगा। हंकारी दोवें नहीं झुकते। हंकार जिस वक्त घड़िया जाता है, अणख बन जाता है। मन जिस वक्त घड़िया जाता है, गलत फुरने नहीं पैदा होंगे। बुद्धि जिस वक्त घड़ी जाती है, गलत फैसले नहीं करती। चित्त जिस दिन घड़िया जाता है, गलत गल्लां नूं याद नहीं करता। ते अहम हंकार जिस दिन घड़िया जाता है, वो गैरत बन जाती है, अणख बन जाती है। इकबाल कहता है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। इकबाल कहता अपनी अणख इतनी मजबूत कर, इतनी बुलंद कर कि रब नूं ही पुछना पे, ऐ बंदे दस ते सही तेनू चाहिदा की है, तू किवें हाथ जोड़ के खड़े होवें, ऐ खुदा मैनू ये दे, मैनू ये दे, मैनू ये दे। इकबाल कहता है गल जच्ची नहीं, तू अपनी अणख इतनी बुलंद कर कि रब दे अगों भी मंगता क्यों खड़ा होवे, तू उसका पुत्र है।
ਤੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਖੜਾ। ਤੂੰ ਇਤਨੀ ਆਪਣੀ ਖੁਦੀ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ अपनी अणख ਨੂੰ इतना बुलंद कर, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो भगत अणखीले होंगे ने, वो भी नहीं झुकते, जालम दे अगों नहीं झुकते, दुराचारी दे अगों नहीं झुकते, जाबर दे अगों नहीं झुकते। गुरु नानक ने साफ कह दिता है, बाबर तू बाबर नहीं जाबर है। तू ते पापियां दी जंज लैके आ गया हिंदुस्तान नूं लुटण वास्ते, हिंदुस्तान नूं ढेटा घर बना लिया तू। पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगे दानवे ला लो। बड़ी जुर्रत है, बड़ी हिम्मत है। गुरु नानक देव जी महाराज ने शब्द कहे। जिस वक्त औरंगजेब दे चंद अहलकारां ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं आख्या भी किले तुहाडे मसमार कर दिते खत्म, ते धन तुहाडे कोल रिहा नहीं, जरनैल तुहाडे मार दिते ने, और निरे जरनैल ही नहीं पिता तुहाडा शहीद हो गया, ते बच्चे भी तुहाडे मार दिते। हुण ऐसी हालत दे जे तुसी फकीर हो, जे तुसी संत हो, तां हार मन लो, सच्चाई नूं कबूल कर लो बई कुछ नहीं रहा। साहब कहन हार ते नहीं मन, जालम दे अगों हार मन जाइए, जाबर दे अगों हार मन जाइए नहीं। एहलकार कहने जो दिल दे हमदर्दी का थोड़ा जिहा मादा रखते हैं, महाराज हार ते मननी पैगी। और एक फकीर का कम है, एक संत का कम है, सच्चाई नूं कबूल कर ले। ते सच्चाई ये तुहाडे कोल कुछ नहीं। किले तुहाडे ढा दिते गए, बच्चे तुहाडे मार दिते गए, पिता तुहाडा शहीद हो गया, जरनैल तुहाडे मार दिते गए, शस्त्र बस्त्र तुहाडे कोल है नहीं, धन संपदा तुहाडे कोल है नहीं। और हालात इस हद तक हो गए सन, जदों मेरे पातशाह माछीवाड़े पहुंचे ने 3 दिन दे भुखे सन, भोजन नहीं छकिया सी। ओ मां दियां रातां सन, ठंडी रेत सी, उत्थे ही सौ गए। ये हालत सी। पैदल चलदियां चलदियां पैरां छाले हो गए सन, कपड़े फट गए सन, ये हालत हो गई सी। इंज ना समझना जिहड़ा सिखी स्वरूप सानू मिलिया है, किसी ने दर दर दियां ठोकरां खादियां ने, किसी ने अपना खून डोलिया, कोई तत्ती तवी ते बैठा है, किसी ने बंद बंद कटाए ने, किसी ने दर दर दी खाक छाणी है। ये सानू ऋषि मुनियां दा रूप मिलिया है, जो असीं कैंची दी भेंट कर छड्डे। बड़ी मेहनत दे नाल, बड़ी साधना दे नाल, बड़ी कड़ी साधना दे नाल ये स्वरूप सानू मेरे पातशाह ने दिता है। खैर मुख्तसर करिए। साहब कहते हार ते मैं नहीं मननी किसी कीमत ते एहलकार कहते तुसीं संत फकीर, ते फकीर दा ते काम है सच बोलना, ते हुण ते तुसीं हारे होए हो, है कि तुहाडे कोल कुछ भी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जुरत वेखो, आप कहते ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, मैं इतना ते कबूल दा, मेरे कोल साजबाज नहीं, फौज नहीं है, शस्त्र भी नहीं है, धन भी नहीं, संपदा नहीं, एक फकीर दे नाते मैं कबूल करता नहीं है मेरे को। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदावंद बख्शंदई ऐशो अर्श। ये ठीक है फौज नहीं, शस्त्र नहीं, मेरा पिता नहीं रहा, मेरे बच्चे नहीं रहे, धन संपदा नहीं रहे, पर मेरा खुदा ते मेरे नाल है। एक निक्का जिहा कोई ठोकर बंदे नूं लग जाए, थोड़ा जिहा किधरे नुकसान हो जाए, घर विच कोई बीमार पै जाए, बंदा कह उठदा पता नहीं गुरु है भी सही कि नहीं, पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। पर तुसी देखो पिता शहीद हो गया, बच्चे शहीद हो गए, घर घाट तबाह हो गया, ते मेरे पातशाह कहंदे मेरा खुदा ते मेरे नाल है, मेरा रब ते मेरे नाल है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का घर घाट लुट लिया सी प्रिथी चंद ने, मसंदा ने सब कुछ लुट लिया, और हालत इत्थे तक पहुंची कपड़े भी लै गया, भांडे भी लै गया, चारपाइयां भी चुक के लै गया, अन्न धन भी चुक के लै गया। अज दिन भर लंगर नहीं बनया और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने प्रसादा नहीं छके। आप दी सुपत्नी जगत माता गंगा वो घर नूं टोलदियां ने भी कोई रसद पानी लभे ते बना के भोजन गुरु अर्जन देव जी नूं छकाई। एक मिट्टी दे भांडे विच किधरे बेसन पिया सी ते जगत माता गंगा ने 2 प्रसादे बनाए, गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों रखे, रो पईयां क्योंकि थल्ले बैठे सन गुरु अर्जन देव जी, चारपाइयां तख्त सब चुक के लै गए।
ਭਾਂਡੇ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ, ਬਿਸਤਰੇ ਸਭ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਥੱਲੇ ਭੋਏ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਉਂ ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਤੇ ਜਗਤ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਰੋ ਪਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਾਨੜੇ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜ ਹੈ, ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ ਸਖੀ ਪ੍ਰੇ ਸੰਗ ਸੂਖ ਬਿਹਾਰ। ਐ ਸਖੀ ਰੋ ਨਾ। ਰੋਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਭੋਜਨ ਰੁੱਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰੋਣੀ ਹੈ। ਰੋ ਨਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਅੰਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਿਸਤਰੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰੂਖੋ ਭੋਜਨ ਭੂਮ ਸੈਨ सखी प्रे संग सूख ब्याज, कितना विश्वास, कितनी सिद्ध, कितना भरोसा। साहब कहना मेरा खुदा मेरे नाल है, मैं उस आसरे ते लड़ांगा। पर अहलकार आलम से कहने लगा महाराज गल है तुसी फकीर हो ते संत हो, खुले रूप में तुसी नहीं कबूलिया कि मेरी हार हुई है। तुसी एक पे कहते हो मेरा खुदा मेरे नाल है ते मैं लड़ांगा। लड़ाई हुंदी है शस्त्रां नाल, वस्त्रां नाल, धन नाल, संपदा नाल, किलियां दे नाल। ये ते है नहीं, ये तुहाडे कोल नहीं। और तुसी ये भी खुले रूप में कबूल करो सब कुछ तबाह हो गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। साहब कबूल कर देना, जफरनामा पढ़ोगे तो दंग रह जाओगे। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की रचना। साहब थे कहने चाहा शुद्ध के चूं बच गां कुश्ताचार के बाकी बमां दस्त पेचीदा मार। वो की होया, चार बच्चे मार छड़े, की होया? इनू कोई मैं महानता नहीं देता। तुसी आखोगे कि मेरा दिल ढह जाएगा, कंब जाएगा। चाहा शुद्ध की होया? कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं होया। चाहा शुद्ध के चूं बच्चे गां कुश्ताचार के बाकी बमां दस्त पेचीदा मार। चे मर्दी के अफगर खामोशा को नहीं के आतिश दमारा फिरोजा को नहीं। उत्थे साहब कहंदे ने एक बलदी हुई अग दे चों चार चिंगारियां बुझा देनियां ते तेल पा के होर भड़का देना। ये कोई मर्दानगी ते नहीं, ये कोई सियाणप ते नहीं। चार बच्चियां दी मौत नूं मैं सिर्फ इतना ही समझदा कि भांबड़ बलदी हुई अग दे चार चिंगारियां ही बुझियां और कुछ नहीं। मैं कोई मानता नहीं देता। खुद अंदाजा लगाओ कितने वड्डे जिगरे दा ये महापुरुष मालिक होवेगा, कितना वड्डा विशाल इसदा गुरदा है, इसदा जिगर है, इसदा सीना है, जो इस ढंग नाल मत्था मार रहा है एक जालम दे नाल टकरा रहा है। पर अगों भी चर्चा करने वाला एक आलम है, वो कहंदा महाराज मेरी गल विचे रह गई, तुसी खुले रूप में कबूल करो मेरी हार हुई है। और वाकई थोड़ी हार हुई है। और संत दा एक कम है सच बोलना। तुसी संत हो, तुसी फकीर हो, कबूल हो कि वाकई कुछ नहीं। और बोल बड़े कीमती ने जेड़े मेरे पातशाह ने कहे ने, संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद। क्योंकि औरंगजेब के ओदे एहलकार पर्शियन तो बिना और कुछ नहीं समझते सन। ते पर्शियन दे महान आलम गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने जफरनामा पर्शियन दे उच्चारण किया। संगे बदगो गर अगर कासा है जरी शिकंद, कीमते संग ने फजायद वजर कम न शोध। साहब थे कहते मैं मनदा अगर कोई भैड़ा बदकलाम बंदा जालम बंदा पत्थर चुक के सोने दे कासे नूं तोड़न दी कोशिश करे तब मैं मनदा सोने दा कासा टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटे। मैं मनदा, इस गल नूं मनदा। पातशाह की इल्मीयत इत्थे टपकदी पई है कि कितने आप आलम ने, कहण दा ढंग कितना निराला है, कितनी खूबी दे नाल आप औरंगजेब के सामने ये सब कुछ रख रहे हैं। साहब कहते मैं मनदा अगर कोई पत्थर चुक के एक सोने के कासे नूं तोड़न की कोशिश करे, टुट जाएगा सोने का कासा, पत्थर नहीं टुटेगा। पर साहब कहते कीमत संग ने फजाए वजर कम न शू। पत्थर की कीमत कोई वधनी नहीं, सोने की कीमत कोई घटनी नहीं। मैं मनदा
तू सोने का कासा तोड़िया है। गुरु तेग बहादुर साहब मेरे मासूम बच्चे, तू बड़े बड़े जरनैल सिख संत सिपाही सोने के कासे तोड़े ने, मैं मनदा, और टुट गए ने, सोने के कासे टुट गए ने। मैं ये भी मनदा पत्थर नहीं टुटिया जिस पत्थर नाल तू तोड़े ने, पर पत्थर की कीमत कोई वधी नहीं, सोने की कीमत कोई घटी नहीं। ता जिंदगी लोग इन्हां शहीदां नूं याद करके जिंदगी की प्रेरणा लैणगे, जीवन की प्रेरणा लैणगे, और तेरे उपर ता जिंदगी फिटकारा ही पैणगे। कहते ने इस जफरनामे नूं पढ़ के सुख की नींद औरंगजेब नहीं सो सकिया सी, तड़पदा ही रहा भाई ये की कर बैठा, मैथों अनर्थ हो गए, मेरी वाकई कीमत कोई वधी नहीं, और उस महापुरुष की कीमत वाकई कोई घटी नहीं जिहड़ी मैं घटाने की कोशिश की थी, वो तो नहीं घटी। हुण सोना टुट जाए तो कोई पित्तल थोड़ी बन जाता, सोने उसकी कीमत थोड़ी घटेगी। कीमत संग ने पजाए वजर कम न शो, अहम घड़िया जाता, शर्म खंड बंदा अणखीला हो जाएगा, हंकारी नहीं अणखीला। हंकार मिट नहीं सकता, इनू बदलना पएगा। तुसीं आखो हंकार अंदरों कढ़ दईए, नहीं निकलेगा, ये रहेगा। ये दान करांगे, दान का हंकार हो जाएगा, ज्ञान करांगे, ज्ञान का हंकार हो जाएगा, सेवा करांगे, सेवा का हंकार हो जाएगा, कीर्तन करांगे, कीर्तन का हंकार हो जाएगा, कथा करांगे, कथा का हंकार हो जाएगा। ये हर थां तो पैदा हो जाता है, पर जिहदा हंकार घड़िया जाए अणख बन जाता है, गैरत खुद ही, वो बंदा नहीं झुकेगा। एक होर निक्की जी गाथा कह के मैं समाप्ति करा, ते सिकंदर लोधी नूं गल चंगी नहीं लगती सी भी हज़ारां बंदियां दा इकट्ठ हो जाता है, ये कुछ ऐसा वैसा बोल के बागियाना तबीयत भी पैदा कर सकता है, हिंदुस्तान में बगावत करा सकता है। लिहाजा नामदेव नूं पकड़ के जेल विच पा दिता ते बहाना की बनाया, तू मेरी मोई हुई गऊ जिवा, तां ते तैनूं मैं मनांगा तू संत है भगत है, ते जे नहीं तो निराई पखंडी है। एवें हज़ारां बंदियां दा वक्त जाया करदा, एवें हज़ारां मनुखां नूं पिछे तोरी फिरदा। ते नामदेव नूं कह दिता इतनी गल है, ऐ जिवा। नामदेव कहन लगा नहीं, हमरा किया कछु ना होए, कर है राम होए है सो। ये जन्म ते मरण परमात्मा के हथ च, मेरे हथ च नहीं। जोर ना जीवन मरण ना जोर, परमात्मा के हथ च। हुण असी मकान बनाना होवे ना, ते मकान तो पुछदे नहीं तू बनना भी चाहना है कि नहीं, ते मकान नूं ढाहना होवे ते असी पुछदे नहीं तू ढहना भी चाहना है कि नहीं। रब साथों नहीं पुछदा तू जमना भी चाहना है कि नहीं, रब साथों नहीं पुछदा तू मरना भी चाहना है कि नहीं। जोर ना जीवन मरण ना जोर, ये जमना मरना उसने अपने हाथ च रखे, अपने हाथ विच। इत्थे साडी मर्जी नहीं, इत्थे साडा काबू नहीं। जोर ना जीवन मरण ना जोर। नामदेव ने कह दिता है जन्म मरण हमरे वस ना है, ये मोई होई गऊ मैं नहीं जवा सकता, ये मेरे वस तो परे दी गल, ये परमात्मा के हाथ च, ये राम के हाथ च। तो शहनशाह ने कह दिता अच्छा फिर सवेरे सूरज चढ़न तो पहले मैं तेनों कतल कर देना, तू एवें पखंडी है, एवें हज़ारां मनुखां दा वक्त जाया करना, जिथे जाना हज़ारां दा इकट्ठ कर लेना। अंदर तो उसकी यही गल सी किधरे बगावत ना करावे, पर उन्होंने बहाना लग पिया नामदेव नूं मारन दा। दिल्ली दे पतवंते बंदे बादशाह कोल पहुंच गए, आखण लगे इस तरह के कीमती मनुख कदी कदाई आउंदे ने संसार दे, कदी कदा। ये बड़ा कीमती बंदा है, ये बड़ा कीमती मनुख है। बदकिस्मती ये है कि भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आए, जोड़ जुड़दा ही नहीं, कभी मेल बनता ही नहीं। खास करके संसारी तो मुराद हंकारी, ते राजनीतिक तो ज्यादा और कौन हंकारी होगा, वो हंकारी होंगे, वो टकरांदा है। वो कहता पूजा तो मेरी होनी चाहिए, यदी क्यों हो रही, हुक्म तो मेरा चलना चाहिए, यदा क्यों चलता, इकट्ठ तो मेरे आले दुआले होना चाहिए, ये आले दुआले क्यों होता है। तो संघर्ष हो जाता है, टकराव हो जाता है। सिकंदर लोधी कहने लगा नहीं, ये कीमती मनुख नहीं है, कतई नहीं है। दिल्ली के पतवंतियां ने बड़े तरले लाए और वो सोना ते चांदी लैके गए, ते कहने लगे बादशाह नामदेव के शरीर का जितना वजन है ना, असी उतना सोना देंदे इनू छड़ दे। इत्थों पता चलता है कि दिल्ली के पतवंते बंदियां दे अंदर नामदेव का कितना सम्मान सी, कितनी इज्जत सी। वो बादशाह बड़ा ही माल लौता दोजक परे लंबी चौड़ी कथा है, गुरु ग्रंथ साहब मैं संक्षेप के चर्च किया करता।
बादशाह कहने लगा नहीं, माल लैके नहीं छड़ना, इसमें सोना लैके नहीं छड़ना, मैं दोजख दे जावांगा। धन संपदा लैके मैं इस भगत नूं नहीं छड़ना, ये मोई हुई गऊ जवाब है। कहते ने दिल्ली दे वो भगत जन कहन लगे, बादशाह मोई हुई गऊ ते नामदेव जिवांदा नहीं, ते धन तुसी नहीं लेंदे, धन लैके तुसी नहीं छड़दे, तो इन्हां दोवां गल्लां नूं एक पासे रख के कोई तीसरा रस्ता कढ लो जिहदे नाल नामदेव की जान बच जाए। लंबी सोच तो बाद पातशाह कहने लगा, हाँ तीसरा रास्ता है, ये राम राम कहना छड़ देवे, अल्लाह अल्लाह, बस इन्ना ही, और कोई तरीका नहीं। ये कलमा पढ़ लो, ये बिठल बिठल कहना छड़ देवे, खुदा खुदा के, ते आपां इसनूं छड़ देंगे। दिल्ली दे पतवंते कहन लगे, बई भगता कह दे, जान बच जाती है, फिर चले, फिर तू बिठल बिठल कहता रहे, फिर तू राम राम कहता नहीं, इत्थों ते निकलण दी कर। हुण भगत बड़े अणखीले आउंदे ने, अणखीला बंदा झुकदा नहीं, कहण लगे नहीं ये नहीं हो सकदा। और कहंदे ने मां जिहड़ी नामदेव जी दे नाल सी, वो कहण लगी पुत्रा कह दे, जिंदगी बचदी है, तू मेरा इको एक पुत्र है, कह दे। ते फिर तू बिठल बिठल आखदा रवी, पर अज कह दे, जान बचदी। इतना जोर मां पाण लग पई, जोश दे च आके भगत नामदेव ने साफ कह दिता, ना हो तेरा पुंगरा, ना तू मेरी माए, पिंड परे तो हर गुण का। जे तू मैनू बहुता मजबूर करेंगे तो फिर मैं मां का रिश्ता तोड़ सकदा, राम का नहीं। मैं बिठल बिठल खावां। इत्थों एक प्रेरणा मिलती है, अगर सच दे मार्ग दे प्यो भी होड़े, मां भी होड़े, तो उत्थे मां बाप की गल भी नज़र अंदाज करनी, सच की गल नहीं नज़र अंदाज करनी, गुरु की गल नज़र अंदाज नहीं करनी। जे मां बाप उस मार्ग ते तोरन जो गुरु का है, उन्होंने धन्यवाद शुकराना जरूर करना चाहिए। तो जे मां बाप रोक बन जान, फिर तो टकराव है। प्रहलाद अपने प्यो नाल टकरा बैठा सी, नामदेव अपनी मां नाल टकरा बैठा, इतिहास साडे सामने है। ना हो तेरा पोंगरा, ना तू मेरी माए, पिंड परे तो हर गुण गाए। पर मां आखिर नामदेव की मां सी, नाल कथा सुनदियां सुनदियां सियाणी बहुत हो गई सी। कहने लगी पुत्रा मैं तो कई दफा सुनिया तू अल्लाह अल्लाह भी करदा है, कई दफा मेरे कन्ना ने सुनिया। नामदेव के शब्द ने, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, हाजरा हजूर दरपेश तो मनी, दरियाओ तू दहिंद तू बिस्यार तू धनी, दे ले एक तू दिगर को नहीं, तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी, नामे चे स्वामी बख्शिंद तू हरी। ये सारे नाम इस्लामी ने, करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी, सारे नाम इस्लामी ने। मां कहने लगी पुत्रा मैं तेरी रसना तो कई दफा करीम करीम भी सुने, करीम रहीम ऐ भी सुने, अल्लाह ये भी धुन सुनी है, अज की हो गया कह दे, जान बच गई। नामदेव कहने लगे नहीं मां, वो जड़ा मैं कहना अपनी मौज च कहना, अपनी मस्ती च कहना, ते अज जड़ा आखांगा ये दबाव हेठ आखांगा, ये अगों झुक के आखांगा, नहीं ये नहीं हो सकता। मौज च मैं कह सकदा, मस्ती च मैं कह सकदा, ये अगों झुक के नहीं कह सकदा। जालम दे अगों झुक जावां, ये हो ही नहीं सकता। और जो जालम दे अगों झुक जाए वो संत भी नहीं, इतनी मैं अर्ज कर दें, भगत भी नहीं। वो कहता भगत जो जालम दे अगों झुक गया, जो झूठ दे अगों झुक गया, जो फरेब दे अगों झुक गया, जो दुराचार दे अगों झुक गया, वो संत नहीं है, वो भगत नहीं है। भगत कदी नहीं झुके, हंकारी नहीं झुकदा भगतां दे अगों, भगत नहीं झुकदा जालमां दे अगों। इतिहास है साडे सामने। तो भगत दे अंदर हंकार नहीं, इस चक्कर च कदी ना पैना। भगत अणखीले ने, हंकार घड़िया गया, तिथे घड़ीए सुरत मत मन बुद्ध। सुरत घड़ी गई, मन घड़िया गया, बुद्ध घड़ी गई। भाव सुरत चेते शक्ति, यादा शक्ति का केंद्र। भी फलाने की सुरत जुड़ी हुई, फलाने का चेता नाम दे याद क्या कर। मन बुद्ध चित्त अहम एक चतुष्टा अंतःकरण। घड़े हुए मन की यह पहचान, वो जिथे भी बैठेगा अंदर चंगे फुरने पैदा होंगे। वो जिथे भी बैठेगा फैसला सही करेगा, गलत फैसला नहीं करेगा। वो जिथे भी बैठा होगा सही यादां दे होगा, और वो हर वक्त अणखीला होगा, झुकेगा बिल्कुल नहीं। जालम दे अगों, झूठ दे अगों, अनर्थ दे अगों बिल्कुल नहीं झुकेगा। वो आकड़ा ही रहेगा अणख करके।
खुददारी करके, खुद ही करके। सरमखंड की यह पहचान। और फिर मैं अर्ज कर दिया, अगर इस तरह का नहीं, मन में गलत फुरने भी पैदा होते हैं, तो गलत गल्लां नूं असीं याद भी करते होइए, ते अंदर हंकार भी होवे, ते फैसले भी साथों गलत हो जाते होन, असीं सरमखंड के मालिक नहीं हाँ, सरमखंड तक नहीं पहुंचे। ते सानू इतना भी ना पता चलता हो कि परमात्मा एक व्यक्ति नहीं, एक शक्ति है, पसरी, इस तरह का बोध नहीं, तो फिर असीं ज्ञान खंड विच भी कोई नहीं। ते जे खाने पीने का सही इस्तेमाल नहीं, वेखण, बोलना, सुनना, जिंदगी का इस्तेमाल ही सही नहीं, तो असीं धर्मखंडी भी कोई नहीं। अगों है कर्मखंड, फिर अगों है सचखंड, जिहदी व्याख्या गुरु नानक देव जी महाराज करते हैं। पर समय की बंदिश नूं सामने रखना भी बड़ा लाजमी है, तो वक्त हो गया। सरमखंड तक की इतनी पहचान, बुद्धि घड़ी गई, मन घड़िया गया, चित्त घड़िया गया, अहम घड़िया गया। खुलासा इसका मैं फिर भी थोड़ा जिहा कर देंगे। तो कर्मखंड, सचखंड, ये उपर दे पड़ाव ने। अध विचकार तो मनुख लंघ गया, ऐन रब दे नेड़े, ते सचखंड विच जाके लीन हो गया। पर सरमखंड एक ऐसी बिखड़ी घाटी है, इत्थे कई भटक जाते हैं, क्योंकि इनू सरमखंड महाराज ने कहा बड़ा मेहनत का खंड, बड़ी बिखड़ी घाटी, बहुत बिखड़ियां पौड़ियां जिथों लंघना है, जिथों चढ़ना। सरमखंड की बाणी रूप, सरमखंड मेहनत का खंड, इत्थे घड़ना है, ते घड़ना ही बहुत औखा है। अपने मन जद घड़िया जाता है, काबू च होगा, गलत फुरने नहीं पैदा होंगे। मैं देखदा जिहड़ी चीज़ काबू च होवे ना, बंदा उस तो सुख लैंदा है, ते जिहड़ी चीज़ काबू च नहीं, उस तो सुख नहीं लिया जा सकता। बगौर कदी मुताला करके वेखना, बंदे ने घोड़े नूं पकड़िया ते घोड़े के मूँह च लगाम पा दी है। उठ तो कम लिया है, बंदे ने उठ दे नक दे च नकेल पा दी है। हाथियां तो मनुख ने कम लिया ते हाथी के सिर दे उत्ते अंकुश रख दिता है। हुण अंकुश ना होवे हाथी के सिर दे च, हाथी बेकाबू, लगाम ना होवे घोड़े के मूँह दे च, घोड़ा बेकाबू, नकेल ना होवे उठ दे नक दे च, उठ बेकाबू, बैल बेकाबू। थोड़ी कार है, हुण इहदे च ब्रेकां ने, ना होवन, इस तो सुख लै सकोगे? जिहड़ी चीज़ चल रही है, रुकना भी चाहिए, उहदे नाल रोकथाम का आला भी चाहिए। हुण रेल है, भावें सारे नहीं चला सकते, पर रोक तो हर बंदा सकता है ना। हर डब्बे च पुल चेंज खिंच लो तो रोक, चला नहीं सकते सारे, रोक सकते। चलण दे नाल नाल रुकना भी बड़ा लाजमी, रोकना भी बड़ा लाजमी। जिथे लोड़ पे रोकीए, गलत पासे जाए रोकीए। मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी एह मन होड़िए। हुण मैं देखदा बंदे ने हाथियां नूं काबू च कीता है, घोड़ियां नूं काबू च कीता है, बैलां नूं काबू च कीता है, और उठां नूं काबू च कीता है। रेलां मोटरां गड्डियां बंदे दे काबू च ने, बंदे दा मन बंदे दे काबू च नहीं। ये जिधर चाहे भटकदा फिरदा है, कोई काबू च नहीं, ब्रेकां है नहीं कोई। और बिना ब्रेक की जिहड़ी गड्डी होवे, खिमा करनी कईयां नूं लिताड़ेगी। बिना ब्रेक के जिहड़े बंदे गुरुद्वारे आ जांदे, बड़ा ही अनर्थ करदे ने, बड़ा ही अनर्थ। बिना ब्रेकां ही कोई नहीं, कदी इधर पे टकरांदे, कदी उधर पे टकरांदे, कदी इधर पे अनर्थ करदे, कदी उधर पे अनर्थ करदे, ब्रेकां ही कोई नहीं। शब्द की ब्रेक कोई नहीं जिहदे नाल अपने मन नूं रोक लैण। मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी एह मन होड़ी। जिहनूं अपने मन नूं होड़न की जांच आउंदी है, वो इत्थे बैठ के जाप ते करेगा, इत्थे बैठ के कदी शराब पी के नहीं आएगा, ना पिएगा, ना ताश खेलेगा, क्योंकि उन्होंने मन रोकने की जांच आ गई। मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी एह मन होड़ी। उन्हें रोक लिया, अपने ब्रेकां ला लईआं, उहदा मन उसके काबू च है। और जिसका मन जिसके काबू दे है, ऐसा मनुख हर थां दे ते हर वस्तु का सही इस्तेमाल करेगा, कतई गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। सरमखंडी मनुख की यह पहचान है। खंडा की जिहड़ी व्याख्या गुरु नानक देव जी ने की, पढ़ के सिर्फ मैं तुहानूं सुना रहा, एक टीका, एक तर्जमा कर रहा। ये मेरे निजी कोई ख्याल नहीं, निजी कोई विचार नहीं, सिर्फ उन्होंने खंडा दे जो कुछ बाबे ने लिखे है, एक पाठी की तरह पढ़ के मैं तुहानूं सरवण करा रहा। कि कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए, कहो कबीर संसार नहीं अंत परमगत पाए। कोई सुन के अपना मन जोड़े, कोई सुना के अपना मन जोड़े, कबीर कहने परम गति मिल जाए।
ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੁੜੇ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो सतगुरु मेहरा वरदान, सुन के तुसी जुड़ सको, सुना के मैं जुड़ सका, ते गल बन जाए ते गुरु की बख्शिश हो सके। इतनियां विचारां इस वक्त प्रवान करनियां। कर्मखंड ते सचखंड की व्याख्या कल शाम को आप जी के सामने रखांगे। भुल चुक लई खिमा की याचना, गज वज के फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की